Kill the boy and let the man be born. Bro, it sounds so poetic on the internet, but here's the bitter truth. Majority of people are misunderstanding the actual meaning of kill the boy. हर दूसरा 15-16 साल का बंदा सीईओ बनना चाहता है, कोरा पे ज्ञान दे रहा है और आईजी पे स्टॉइसिज्म के कोड्स डाल रहा है जैसे मार्कस और एलियस उसका रूममेट हो. बट नो वन टॉकिंग अबाउट द फेस दे आर स्किपिंग, लिविंग दैट वाइल्ड, मैसी, कंफ्यूज्ड, awkward boyhood. The internet pushes this one narrative. Act like a man, be a alpha, hustle hard. But nobody says this. Becoming a man has a time, a phase, a natural evolution. If you are in the age group of 14 to 17 and already trying to become a robotic adult, you're skipping chapters in the name of masculinity. You're not killing the boy, you're suffocating him before he ever got to live. And no, bro, I am not against being a man, but timing matters, mere bhai. Masculinity is equal to discipline, vision, responsibility. But जब तू 13, 14, 15 की एज में ही रोबोटिक अडल्ट बनने की कोशिश करता है, तू अपना सबसे बड़ा गिफ्ट मिस करता है. ब्रो, तुझे पता नहीं है कि तेरे पास इस एज में कितना बड़ा गिफ्ट है. दैट इज द मैसी लर्निंग फेस. ब्रो लिसन, एट योर एज नो वन इज टेकिंग यू दैट सीरियस. नो वन is expecting you to act perfect. You can experiment with your personality, your communication, your dating game, and ityadi. This is your chaos era, your lab, your jungle, your battleground. Flirt like it's a game, fail like it's a lesson, talk nonsense, then reinvent your voice. You are not lost, you are loading. And legends don't come out polished. They crawl out of confusion, gripping in experience. Just like your song में bro. And इसलिए मैं कहता हूँ भाई, experience होता है. Cause you can't be smooth without being awkward first. You can't be emotionally strong without a first heartbreak. You can't be charming without being cringy first. And bro, I still remember my first step towards becoming a too young Casanova was just asking a question from a girl जिस पे मुझे बहुत गंदा वाला क्रश था. एंड उसको एक क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे पूरा एक वीक लग गया था. एंड जब उससे बात कर रहा था ना, तब लिटरली मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी. आई वॉज स्टैमरिंग, फंबल कर रहा था मैं. बट स्टिल मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया एंड बूम, हियर इज अ सॉन्ग में ब्रो. मेरा भी हार्ट ब्रेक हुआ. मैं भी वो क्रिंज बंदा था अपनी एज का, जिसको पूरे स्कूल का लंच खाना होता था और डम बैट करता था. इन शॉर्ट, मैंने अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्ट करा है. बाय द वे, आई एम अ बिट डाउन इन माई डे टू डे लाइफ, कॉज गॉड हैज़ नर्व्ड मी इन अ नॉर्मल कोर्स एंड स्टॉप्स, कॉज आई एम ऑलरेडी overpowered in some important fields, money and girls. And one more thing, people often misunderstand the trauma with masculinity. No, being silent and numb doesn't make you strong. ये जो kill the boy, become the alpha man के comments check करना, वहाँ सब we should be emotionless, skull emoji, child emoji, fire emoji लिखने वाले बहुत मिलेंगे एंड सब के सब बच्चे हैं. नो इमोशंस इज इक्वल टू अल्फा मेल. ये तो नैरेटिव सेट कर दिया आज के कुछ रीडर्स ने. एंड ब्रो, ये माइंडसेट टॉक्सिक और नेगेटिव दोनों है यार. मोस्ट गाइस pretending to be cold, emotionless, serious are just hiding the scared, confused boy inside them. They haven't killed the boy, they have just buried him alive. Inside they're still confused, scared और सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सब हैंडल कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट रियल मैस्कुलिनिटी इज?
It's emotional awareness plus emotional control, not emotional death. 11th के टाइम पे मेरी क्लास में एक बंदा था, वो ना भी सिलिन मोफी 48 लॉज ऑफ पावर की बुक जब देखो तब उठा के पढ़ने लगता. ही वॉज अ ट्राई हार्डर भाई. एंड ऐसा नहीं है कि अब बुक पढ़ना अलग बात है, बट ही वॉज ट्राइंग टू बी अ इंटरनेट सिग्मा. इंस्टा पे नया नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड आया था, तो यह मुझे अच्छे से याद है. तो वो बंदा बस ट्राई हार्ड रह गया पूरी स्कूल लाइफ. ऑन द अदर एंड मैंने क्रिंज हरकतें करी. यार लोगों के लंच खा रहा हूँ मैं, जूनियर गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज़, सीनियर बॉयज़, किसी को नहीं छोड़ा. अरे टीचर्स तक का लंच खाया है मैंने भाई. स्पोर्ट्स में गया, दिन के 3-4 घंटे फील्ड में पागलों की तरह प्रैक्टिस करी है. स्कोर्ड 90s इन मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स, मेड ब्रोज, मेड होज एंड वट नॉट, इवन अ लॉट ऑफ गुड गर्ल्स. सो समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ. सो वट शुड यू एक्चुअली डू देन? बहुत स्वीट और कंसाइज है. डोंट किल द बॉय, लेट हिम एक्सप्लोर, मेक मिस्टेक्स और मज़े करो. ये मज़े करो वाला सेंटेंस मैं बहुत बोलता हूँ. जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेन हिम, गिव हिम चैलेंजेस, रिफ्लेक्ट करने का चांस दे उसे. ब्रो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ. अ बॉय गोज थ्रू अ लॉट ऑफ केओस. वो वहाँ से एक्सपीरियंस और अवेयरनेस सीखता स्लेस लेता है. एंड देन ही ग्रोज एंड लास्ट द अल्टीमेट मैन. दिस इज द राइट पाथ. ना कि अ बॉय वॉचेस सम वीडियो ऑन वाईटी जिसमें कोई फीलिंग्स कोई प्रैक्टिकलिटी ना हो, एंड देन एक फ्रस्ट्रेटेड डूड बन जाए जिसकी लाइफ बोरिंग है. गॉट नो ब्रोज, गॉट नो होज, कुछ भी नहीं. बाय द वे, नो होज इज अ गुड थिंग, बट ओनली इफ इट्स अ चॉइस. लाइक मुझे पता है आई कैन पुल गर्ल्स हु आर ग्रीन फ्लैग टू रेड फ्लैग्स. तो अब मैं एक्टिवली पुल करता भी नहीं, सब की सब अर्काइव में है. समटाइम्स मैसेज सीन कर लेता हूँ रात में, तो फॉर मी इट्स डैम पीसफुल. सो रिमेंबर, नॉट वांटिंग होज और नॉट गेटिंग होज में डिफरेंस होता है. एंड तुम्हारे सॉन्ग में ब्रो ने भी नॉट गेटिंग होज फेस से स्टार्ट किया था, एंड विद टाइम नॉट वांटिंग होज तक ग्रो कर चुका हूँ. सो या, लाइफ इज़ गुड. तो इस वीडियो का कंक्लूजन इतना ही है. द बॉय इनसाइड यू isn't your weakness. He is your wild, raw potential. You don't become a man by killing him. You become a man by shaping him. Cause मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो. And I am dying on this hill.